Okay, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again. Today is our second lecture. Okay, already we have started this course of English pronunciation. Fine. So this is basically our third class, but before that, at the very first class, we only talked about the course. And yesterday we had an introductory class, fine, and today we are going to start the proper class. Okay, so today we are going to talk about to start the proper class. Okay, so we would start from the very beginning, from the sounds. Okay, as yesterday we talked about the problems, the hurdles, the obstacles, the hindrances in English pronunciation. Okay, and then we talked about the solutions. Fine. So as I told you that we are having 26 letters in English language, and we have 44 sounds. Fine. So today we would start from there. Okay, we would discuss individual sound in details. Fine. Okay, what I am going to tell you about the sounds. So first, the name of the sound, the symbol of the sound, spelling patterns, spelling forms, and its sounds. Its silent patterns, fine, and words per practice. So we will talk about that in details today. Okay, so let's go for that. Okay, this is basically the phonetic symbols of 44 sounds. Fine, these are 44 sounds, consonants and vowels. Fine. Okay, so now, before going into the details of the sounds, fine. Let's talk about the articulators first. Place of articulation. Okay, that from where the sounds are articulated, from where the sounds are produced. Okay, you know that this tongue, mouth, teeth, nose, etc. They are called place of articulation. There the words are pronounced. Clear? Okay, so place of articulation. Okay, so let's start from the larynx. Fine, because the larynx, the lungs, the air comes from there, from the lungs. Fine, and it goes through the pharynx. Okay, this pipe. Okay, the pipe we are having here in our throat, that is called pharynx. Then there is soft palate. Okay, we are having this place at the end of our mouth. Okay, so soft palate, and we also call it velium. Then hard palate, बिल्कुल हमारे ज़बान के ऊपर जो वाला हिस्सा इसको, that is called hard palate. Fine. Then teeth ridge or alveolar ridge, जो ये दांतों के पीछे बिल्कुल जो पीछे वाला हिस्सा है, that is called teeth ridge or alveolar ridge. Then teeth. Fine. So tongue, ये ज़बान या तो बिल्कुल पीछे जाती है या बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से हार्ड पैलेट को, या दांतों के पिछले वाले हिस्से या दांतों पे आता है. So this is fine. Then there are lips, upper lips and lower lips, and there are some nasal sounds that the air comes through the nose. Fine, and some through the oral cavity. कुछ जब पीपड़ों से यहाँ पर हवा आती है तो या तो वो मुंह के जरिए निकल जाती है और या वो नाक के जरिए. So these are place of articulation. So now when I would tell you the description of each sound individually in details, okay, so the of these place of articulations. Fine. Okay, so now let's go for the sounds. Okay, so this is the first sound. Okay, so here I will tell you 5 things. 1, sound.
the symbol. First, the symbol. Second, its sounds. One sound, two sounds. That each symbols having one sound or two sounds. So if it is having one sound, so I would tell you that this is having one sound. If it is having two sounds, then I would tell you that it is having two sounds. Okay, so symbol, sounds, okay, spelling patterns, spelling forms. Fourth, you know, fourth is the silent patterns. Okay, that where this word, this letter is silent, this sound is silent. And fifth, words for practice. In each sound, I will tell you these five things. Number first, symbol. Number two, sounds having one or two sounds. Third, form of spellings. Third, silent patterns. And five, words for practice. Fine. So let's come to the first sound. Okay, the first sound is that is p. 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 This is p. P. And in Urdu, this is despa or despa. Fine. So प साउंड प ये जो उर्दू और पश्तो की जो प है, ये जिसके नीचे तीन नुक्ते होते हैं, जिसके नीचे तीन नुक्ते होते हैं, ये वो वाला प है प। और ये बाइलिबियल है। बाइलिबियल मीन्स दोनों होंठों से ये प्रोनाउंस होता है। सो इट इज प एंड इट इज बाइलिबियल फ्रॉम बोथ ऑफ द लिप्स। फाइन। सो इसके दो साउंड्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैंने उलट लिख दिया। ये इस तरह है और इस तरह है। ओके, सो दिस प व्हेन इट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, जब ये लफ्ज़ के शुरू में आता है, सो देन इट इज फ। ये फी और उसके साथ ये जो दो चश्मे ही होती है उसी तरह, ठीक है। और ये इस तरह प्रोनाउंस होता है। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने सामने या तो अपना ये हाथ इस तरह रख दें, थ, तो ये बहुत इंटेंसिटी के साथ ये जो हवा है वो निकलती है। या इसी तरह थ। तो when it comes at the beginning of a sound, so then it is फ, पे और दो चश्मे है के साथ फ। Like park, public, park, okay? And when it comes at the middle or at the end of a word, जब ये लफ्ज़ के दरमियान आता है या लफ्ज़ के आखिर में आता है, so then it is only प। ये जो उर्दू में तीन नुक्तों वाला प होता है, वो उसी तरह जब ये मिडल में आता है और लास्ट में आता है, ठीक है। बताया कि बिगिनिंग क्या है, फ, एंड मिडल और लास्ट में क्या है, फ, ठीक है। तो अब मैं आपको फॉर एग्जांपल पीपल, तो पीपल में ये फ दो जगह आया है, या फल। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। पीपल, पर्पल, तो इस फ, तो ये जो बिगनिंग में आया है, ये जो बिगनिंग में है ये फ है, फ, ये पे और दो चश्मे है। और ये जो मिडल में आया है ये सिर्फ फ है। सो फल, और ये जो है फल। फाइन। और ये बिगनिंग और एंड में तो लास्ट में तो आता है। फॉर एग्जांपल फम, फाइन। सो फम, ओके। जंप, ओके। तो एंड में तो ये इसके तीन पैटर्न्स हो गए। बेसिकली दो पैटर्न्स हैं कि जब ये शुरू में आता है तो ये फी और ये जो दुशश में होता है उसी तरह का आवाज़ देता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उर्दू में भी फल और फल, ये क्या है, फल, फ्रूट वाला फल, लम्हा जिसको फल, ओके। तो फल और पल, इन दोनों में फ़र्क है। तो
when this p sound comes, so it is pronounced as p, p. And when it comes at the middle or at the end, then it is pronounced as pa, bilabial, only bilabial pa. Okay, so again I would give you this example: people, people, or purple, or sirf begin park. Okay, last में jump, jump. Okay, so these are okay. Now I will tell you the silent pattern कि ये फ बहुत से जगहों पे साइलेंट भी होता है. तो yesterday, कल मैंने आप लोगों को एक बताया था NTS. NTS this is formula for फ, ठीक है. When this P comes before NS, then it is silent. Fine. जब ये फ साउंड फ जो साउंड है ये एन टी और एस से पहले आता है तो ये साइलेंट होता है. ठीक है, मैं ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये जो टर्माइन है, टर्मिजन है, न्यूमेटिक है, साम है, तो इसमें ये टी एन और एस. इसी तरह साइकोलॉजी में ये साइलेंट हैं. तो ये एग्जाम्पल जो इधर दिए गए हैं ये पी पी टी ए आर एम आई जी ए एन. फाइन. टर्मेगन, टर्मेगन. ओके, सो इसमें टी से पहले पी आए हैं तो ये पी साइलेंट है. फिर न्यूमेटिक पी पी एन ई यू एम ए टी आई सी, न्यूमेटिक. तो इससे इन से पहले पी आए तो ये यहाँ पर भी साइलेंट है. और साम पी एस ए एल ए एम, साम, इसमें भी ये पी साइलेंट है. तो ये तो सो यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. फाइन. एन टी एस. व्हेन पी कम्स बिफोर एन टी एस देन पी इज साइलेंट देयर. पी इज साइलेंट इन दोस वर्ड्स. Okay, so this is the third thing that I discussed, the silent patterns. Okay, now there are some words for practice. Okay, so we Pete, Pete. Okay, Pel, P-I-L-L, Pel at the beginning. Pencil, P-E-N-C-I-L, pencil. Pass. पैच, P-A-T-C-H, पैच, ये भी बिगनिंग में इस पास. पॉकेट, ये भी बिगनिंग में फॉ, P-A-W, फुल, P-U-L-L, फुल, ये भी बिगनिंग में. फूल, P-double, पब्लिक, P-U-B-L-I-C, पब्लिक, ये भी बिगनिंग में. पर्स, RSE, पर्स, ये भी बिगनिंग में है. फैल, PAIL, फैल, बाल्टी जिसको कहते हैं, ये भी बिगनिंग में है. पोस्ट, पोस्ट, POST, पोस्ट. फाई, पावर, POWER, पावर, ये भी बिगनिंग में है. पॉइंट, POINT, पॉइंट, ये भी बिगनिंग में आया है. फियर, PIER, फियर, ये भी बिगनिंग में है. फेयर, ये भी बिगनिंग में है. पुअर, POUR, पुअर, उंडेलना, गिराना, में है. नाउ ये बिगनिंग में थे तो ये फे और दो चश्मे हैं फ, फ. नाउ एट द मिडल और एंड में ये सिर्फ पाई होता है. ये जो पे और तीन नुक्तों वाले जो पी उर्दू में होता है उसी तरह. ओके, सो कैपेबल, कैपेबल, कैपेबल. ओके, हैप्पी, हैप्पी, ये मिडल में आया है. पीपल, ये भी मिडल में आया है. पीपल, 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 तो इसमें एक बिगनिंग में और एक मिडल में. पीपल. ओके, हेल्प, अब एंड में आया हेल्प, तो ये भी वही ये वाला पे है. ओके, लिप, लिप, ये भी एंड में है. मैप, ये भी ये वाला पे है, एंड वाला. टॉप, स्पॉट, स्पॉट, ये मिडल में आया है. स्पॉट्स, ये भी मिडल में आया है. स्पून, ये भी मिडल में आया है. तो
P. So P is having two sounds. P. This is the symbol. As usual, P. This is the symbol, one. Second, it is having two sounds, P and P. When it comes at the beginning of a word, so it is pronounced as P. ये दो चश्मे है वाले के साथ. और when it comes at the middle and at the end of a word, then it is pronounced as P. ये दो तीन नुक्तों वाला P. So these are the two sounds. Fine. Third thing. I give you some example, the words people, purple, pump, etc., jump, etc. So these were the spelling patterns. And fourth, the silent pattern. The silent pattern is formula NTS. When P comes before an S, then P is silent there. Remember this. This is a short and simple formula NTS. Fine. So when P comes before NTS, so then P is silent there. Okay. And then the fifth one was, I give you some examples. So this was the first sound, P or P. Fine. Now let's move to the second sound. The second sound is B. Second sound is B. Fine. B. Okay, so now this is B. B, it is also bilabial. It says B. It is pronounced B. This is the symbol B. Symbol B. It is the symbol B. And the pronunciation is B. B. As we are having in Urdu or in Pashto, B. B. Fine? Okay, so it is also bilabial. Bilabial sound. It is pronounced from both of the lips. B. 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 Okay, so it's very simple. So first, this is the symbol. B is the symbol for the sound B, and it is bilabial. It is pronounced from both of the lips. B. B. Now third, it's a form of spelling. So it comes, at the beginning of a word, at the middle of a word, and at the end of a word. Fine, like at the bulb, B-U-L-B, bulb. So we are having in two places, okay, at the beginning, at the end, bulb, B-U-L-B, bulb, okay, or double B. Sometimes double B also comes like in hubble, bubble, hubble and bubble. But this double B doesn't pronounce two sounds. It is pronounced as only single sound. Hubble, bubble. Fine, bubble. Okay, so two spelling patterns. It comes at the beginning, at the end, and at the middle. Fine. So these were the spelling patterns. Okay. Fourth, silent. Where it is silent. Fine. So in two places, B is silent. The first one, when B is in the final position and preceded by M. Fine. When B and we find M before B. M before B. So then it is pronounced, then B is silent. B is not pronounced. For example, lamb. L-A-M-B. Lamb. B is not pronounced there. L-A-M-B. So B is silent there. Lamb. Similarly, comb. C-O-M-B. Comb. So now there is M before B. B is on the final position and M is before B. So now the B is silent. Comb. Bomb. B-O-M-B. The accurate since M is before B, so then the B is silent. Bomb. Is similarly combo. C-O-M-B-O. So B, and we are having M before that, so combo. Okay. So when B is on the final position and M is before there, so then
B is silent, like bum, come, thumb, etc., etc. So this was one, that when B is on the final position and M is before B, so then B is silent. One. Second, it is also silent before T in a few places. When B before T, in some places it is silent. Like in the word debt, when B comes before T, then this B is silent. For example, debt, D-E-B-T, debt, कर्ज जिसको हम कहते हैं, D-E-B-T, debt. इसी तरह doubt, D-O-U-B-T, D-O-U-B-T, D-O-U-B-T. So now B is before T, so here the B is silent. Fine. So doubt. Similarly, subtle, S-U-B-T-L-E. The B is before T, so this B is silent. Subtle, S-U-B-T-L-E. Here the B sound is silent. Okay, so two silent patterns. One, when B is on the final position, when it comes at the end of a word, and M is before B, so then the B is silent. And when B comes before T, then B is silent. So these were the two silent patterns. Now there are some words for practice. Okay, so I'll give you some words where you will find B at the beginning, at the middle, and at the end. Okay, so first at the beginning, B, B-double-E, B. Okay, bit, B-I-D, bit. Okay, bet, B-E-D, bet. Bad, B-A-D, bad. Bark, B-A-R-K, bark. Box, B-O-X, box. Bought, B-O-U-G-H-T, bought. Okay, butt, B-U-T, butt. Boot, B-O-O-T, boot. Bud, B-U-D, bud. B-U-R-N, bun. Bay, B-A-Y, bay. B-O-A-T, bought. Buy, B-U-Y, bow. B-O-Y, boy. Beer, B-E-E-R, beer. Bear, B-A-R-E, bear. B-O-A-R, bow. B-O-O-R, bow. October, now at the middle. October, O-C-T-O-B-E-R, October. Okay, Robin, R-O-B-I-N, Robin, at the middle. Bubble, B-U-B-B-L-E, bubble, at the middle. Web, now at the end. Web, W-E-B, web. Bulb, B-U-L-B, bulb, beginning and end. And hubbub, H-U-B-B-U-B, hubbub. These were the spelling pattern, the words for practice, and you can conclude the spelling patterns as well. So let's briefly revise the sound again. Okay, B is the symbol for the sound B, one. Second, it is having only one sound, B, and it is bilabial. It is pronounced from both of the legs. Third, it comes at the beginning, at the middle, and at the end. Okay, as I give you example, bulb and hubble. Fine, so beginning, middle, and end. And the silent patterns, fourth, the silent patterns, there are two silent patterns, that B when it comes at the final position, when it comes at the end of a word, and we find M comes before B and B is on the final position, then B is silent, like come, thumb. So these kind of words. And second, when B comes before T, like debt, doubt, and settle, etc., etc. So then B is silent there. And fifth, I give you some examples that for the beginning, for the middle, and for the final. So this was sound number 2.
Fine? Okay, now come to the third sound. Okay, now the third sound is T. Okay, the third sound is, मैं इसको रिमूव कर दूंगा. Okay, the third sound is T. Okay, so T sound is it is T is the symbol, T is the symbol, and there are two sounds, aspirated and unaspirated sounds. Fine? Okay, so T, when it comes at the beginning, when it comes at the beginning of a sound, like as I told you, I gave you example in the case of P, so similarly it's T. So T के साथ ये जो दो चश्मे है वाली लग जाती है, ये है. जब ये beginning में आता है तो ये T, इसके साथ ये दो चश्मे ही लग जाती है. And when it comes at the middle or at the end, तो फिर ये सिर्फ टी जो साउंड है वहाँ से ये होता है. दूसरी बात इसमें आप जहन में याद रखें कि जब हम टी प्रोनाउंस करते हैं, ये बात जहन में याद रखें, जब हम पठान या पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग जब हम टी प्रोनाउंस करते हैं तो ये हार्ड पैलेट से, जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये फॉर एग्जांपल हमारे दांत हैं, तो ये दांत वाला पिछला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक पीछे वाला हिस्सा है. तो जब हम उर्दू का उर्दू में जो टी है जब हम वो प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से ये जो बिल्कुल ज़बान का ऊपर वाला हिस्सा होता है हार्ड पैलेट, जिस तरह मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था टमाटर का, तो जब हम उर्दू में टमाटर प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ से करते हैं. लेकिन इंग्लिश का इससे थोड़ा सा आ गया है ये दांतों के पीछे, तो हमने ज़बान का जो सिर है उसको ये दांतों के पीछे ले आना है ठ. ओके, लेकिन ये अगर बिगनिंग में आए तो ये ठ, इसके साथ वो दो चश्मे ही लग जाती है, और मिडल में और एंड में ही सिर्फ ठ है. फाइन. सो सिंपल, और ये दो आवाज़ें हैं ठ एंड ठ. ओके, नाउ फॉर्म ऑफ स्पेलिंग्स. खैर ठ. ओके, ठ इसके मैं फॉर्म ऑफ स्पेलिंग आपको बताता हूँ. एक तो ये सिंपल टी आता है, सिंपल टी. ओके, टी एज एन टेंट, TENT, टेंट, बिगिनिंग में और एंड में टेंट. और टाइटल, बिगिनिंग में और मिडल में टाइटल. ओके, इन द पास्ट टेंस, ये मैं अभी लास्ट में एंड में ये चीज़ एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कि ये डी की जगह टी प्रोनाउंस होता है जब ये एक रेगुलर वर्ब होता है, इर्रेगुलर वर्ब होता है. तो रेगुलर वर्ब के एंड में हमेशा जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनते हैं तो उसके एंड में डी या ईडी होती है. तो वो डी और ईडी फिर डा, इसके कुछ साउंड्स हैं, कुछ आवाज़ें हैं, जब वो लास्ट में आते हैं तो फिर वो डी की जगह टी प्रोनाउंस होता है. तो मैं एंड में डी के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट ये TH में भी आता है, लाइक डाइम, टाइम, थॉमस, ओके, थेम्स, मिटेल्डा, ईस्टर, एटसेट्रा. सो TH टी की भी आवाज़ देते हैं और टी की भी देते हैं. टी का हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सिंपल टी बिगनिंग में, मिडल में, एंड में, और TH. तो ये दो बेसिक जो फॉर्म ऑफ स्पेलिंग्स है ये वो है. और डी की जगह टी प्रोनाउंस होता है, वो मैं एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा. डी और टी हम तो दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएगा.
Fine. Now silent. Now where is T silent? Fine. So the silent pattern, T is silent in word ending in STLE. जब किसी वर्ड के एंड में STLE आ जाए तो उसमें में STLE आ जाए तो उसमें ये T साइलेंट होता है. लाइक castle, 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 castle. Okay. या लाइक Thistle, THISTLE, thistle. तो इसमें भी ये साइलेंट है. ओके. दूसरा जो पैटर्न है STEN, जब ये STE साइलेंट होता है. ठीक है. लाइक fasten, FASTEN, hasten. ओके. listen, LISTEN, listen. ओके. और इसी तरह ये साइलेंट होता है लाइक क्रिसमस में क्रिसमस. तो क्रिसमस में ये जो बीच में ठीक है क्रिसमस, या चेस्टनट, ये जो चेस्टनट, इसमें असल चेस्ट लिखा होता है CHESTNUT, बट इसमें ये T बीच में वाला साइलेंट है, चेस्टनट. फाइन. सो तीन पैटर्न्स हो गए कि कहाँ पर T साइलेंट होता है. नंबर 1, जब किसी वर्ड के एंड में STLE आ जाए, STLE, तो उसी सूरत में फिर उस पैटर्न में ये T साइलेंट होता है. दूसरा जो है STEN, जब किसी वर्ड के एंड में आ जाए तो उसमें T. और कुछ इस तरह अल्फाज है लाइक क्रिसमस और चेस्टनट एटसेट्रा एटसेट्रा, में कभी कभार ये एक्सेप्शन है, इसमें भी साइलेंट. तो 3 पैटर्न्स हमने डिस्कस किए कि यहाँ पर T जो है ना ये साइलेंट होता है. Now words for practice. Okay, so I'll give you some words. Ta at the beginning, ta at the middle, and at the end. Because at the initial position, at the beginning, ta is pronounced differently. We are having 2 sounds. Fine. So at the beginning, ये ठ और उसके साथ 2 चश्मे हे लग जाते हैं, ठ ठ ठ. तो और ये जब मिडल और मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे दांत है, दांत जो बिल्कुल पिछला वाला हिस्सा है, ये वहाँ से प्रोनाउंस होता है इंग्लिश में. उर्दू में ये यहाँ से ऊपर से, तालु जो जबान के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा होता है, वाला हिस्सा होता है. और इंग्लिश में ये दांतों के बिल्कुल जो पीछा हिस्सा है, टीथ रिज, यहाँ से टीथ रिज से. ओके. नाउ वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस. TEAT, 10, TIN, 10. Tell, TELL, tell. Attack, now middle में ATTACK, attack. Okay. Task, TASK, task. Top, TOP, top. Talk, TALK, talk. Took, TOOK, took. TWO, two. ओके. तमल, TUMBLE, इसमें ये बी साइलेंट है, तमल, TUMBLE, तमल. और turn, TURN, turn. Take, TAKE, take. Toast, TST, toast. तो ये इसमें बिगनिंग वाला T है, T स्पिस्तर की है. Time, time. Town, TOWN, town. Toy, TOY, toy. TEAR, tear. TEAR, tear. Okay. TORE, tour. TOUR, tour. And 20, TWENTY, 20. Sometimes it is pronounced as 20 and sometimes 20. Okay. Water, W. And native, NATIVE, native. Okay. Constitute, okay. Constitute, CONSI, constitute. Okay. Potato, POTAT. Okay. Print, PRANT, print. Profit,
P-R-O-F-I-T, profit, and doubt, D-O-U-B-T, इसमें ये B silent है, doubt. Fine. So this was sound. Let's revise it again. First, T, this is the symbol. T is the symbol for the word sound. T, it is having two sounds. Second, it is having two sounds. T and ta. T, T और स्पेस तरह and T सिर्फ T. और ये बिल्कुल दांत का पिछला वाला जो हिस्सा है, दांत के पीछे जो हिस्सा है, टीथ रिज, ये वहाँ से प्रोनाउंस होता है. सेकंड, थर्ड, स्पेलिंग पैटर्न्स मैंने बताया कि ये सिंगल बिगिनिंग और एंड में आता है, मिडिल में डबल भी आता है, और डी की जगह ये टी प्रोनाउंस होता है, वो मैं अभी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. फोर्थ, साइलेंट पैटर्न्स. तो साइलेंट पैटर्न्स मैंने 3 बताए. एक, जब वर्ड के एंड में STLE आ जाए तो उसमें ये बार बार बहुत से अल्फाज थे कि जिसके एंड में STLE आया है और उसमें ये टी साइलेंट है. दूसरा जो है ना STEN, तो इसमें भी लेसन और फासन एटसेट्रा, इसमें ये टी साइलेंट होता है. और कभी कभार जो कुछ अल्फाज हैं, जिस तरह मैंने बताया क्रिसमस और चेस्टनट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें भी टी साइलेंट होता है. एंड फिफ्थ, I give you some examples for ta, beginning, middle, and end. Fine. Now, today's fine. Da. So, da, ये चौथा साउंड है डाल. ओके, सो यू सी के ढ, ये देख ले, ढ, ये तो सिंपल हो गया. डी, ये ज़हन में याद रखिए कि सबके सिंबल्स एक जैसे नहीं होंगे. लाइक अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए, प, ब, ठ एंड डा, तो उसके वही हुरूफ जो है ना, वही सिंबल्स हैं. लेकिन ये ज़रूरी नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल दाल, तो दाल इसी तरह है. थे, तो थे इसी तरह है. शीन इसी तरह है. तो इसके कुछ मुख्तलिफ शेप्स भी है, मुख्तलिफ सिंबल्स भी हैं, तो ये बाद में आ जाएगा. तो दिस इज़ द सिंबल ढ, और ये प्रोनाउंस होता है उर्दू और पश्तो की तरह डाल. लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगा उर्दू और पश्तो का जो डाल है वो यहाँ से अदा होता है, ऊपर वाले से. लाइक आपसे कहे डंडा, डंडा, तो ज़बान यहाँ पर आता है बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे. लेकिन इंग्लिश का जो है ना, जहाँ से टी अदा होता है वहाँ से डी भी अदा होता है. ये दांत, ये जो ऊपर वाले दांत, उसके जो बिल्कुल पिछले वाला हिस्सा है, टीथ जी, वहाँ से ढ, ढ, डैडी, डैडी. ओके, डॉग, डॉग, डंकी, तो यहाँ से बिल्कुल ये दांतों के पीछे. तो ये तो हो गए पैटर्न. ओके, नाउ इसके कुछ, इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है. ये फर्स्ट वाला, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तो ये तो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, आप लोगों को ये पता चल जाएगा. लेकिन इसमें एक है, ठीक है, when the consonant, the termination must left. ओके, ये termination ed in adjective is almost always pronounced ed. जब ये एडजेक्टिव के एंड में आता है, एडजेक्टिव के एंड में, तो ये डी की जगह इट प्रोनाउंस होता है. ओके, ब्लेस्ड, एक ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है. फाइन. सिमिलरली यहाँ पर एक है मार्केट. ओके, मार्क्ड और मार्केटली, मार्केटली, एडली, एडली. It is very simple. It comes like doll, dog, donkey, etc. तो ये यहाँ से प्रोनाउंस होता है. और एडजेक्टिव में ये थ प्रोनाउंस होता है, और जब ये एंड में आता है तो इट प्रोनाउंस होता है. फाइन. लाइक आप ये दोबारा पढ़ भी ले. लेकिन इसके हवाले से जो मैंने अभी ठी में, छा साउंड में भी आया था और डा में भी आया था, तो उस लिहाज से ये एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है. और इसको ये बोर्ड पे प्लीज़, कैमरा बोर्ड पे कर दें, ताकि ये स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए. ओके, सो ये जो टी और डी में एक मसला बीच में आ गया, और उस लिहाज से ये पॉइंट बहुत लाजमी है. तो उसके लिए हमने जानना है वर्ब. वर्ब कि वर्ब क्या चीज़ है. ठीक है,
तो वर्ब के मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ कि वर्ब के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, और उन टाइप्स के फिर मैं प्रोनाउंसिएशन पे आता हूँ। ये असल बेसिकली मैं ये चीज़ वो प्रोनाउंसिएशन जो पॉइंट है ठा और डा में, उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक होता है डायनामिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, इसको हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, डायनामिक वर्ब। सेकंड होता है स्टैटिक वर्ब, इसको बी भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड होता है पोजेसिव वर्ब, ठीक है। चौथा होता है हेल्पिंग वर्ब, और पांचवा मॉडल वर्ब। ओके, तो दीज आर, वैसे देयर आर सम अदर टाइप्स एज वेल लाइक लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉपुलेट एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, लेकिन लैंग्वेज लर्नर के लिए ये 5 जो है ना ये बेसिक्स है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायनामिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, पोजेसिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो ये बाकी स्टैटिक वर्ब, पोजेसिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब तो किसी और क्लास में मैं फिर डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके एग्जांपल दे दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन आज का ये जो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से एक पॉइंट आया है टी और डी दोनों में, तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा। ये जो डायनामिक वर्ब होता है एक्शन वर्ब, दो आमतौर जब हम वर्ब को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं वर्ड दैट शोज एन एक्शन। तो बेसिकली हम वो डायनामिक वर्ब के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। डायनामिक वर्ब, वर्ड दैट शोज एन एक्शन, फॉर एग्जांपल गो, अटेंड, स्पीक, एंजॉय, पार्टिसिपेट, लर्न, टीच, लिसन, वॉच, इस जितने भी अल्फाज है ये दे आर कॉल्ड डायनामिक वर्ब, एक्शन वर्ड्स। फाइन, ओके। नाउ देयर आर 2 टाइप्स, मजीद इसके सब टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप्स डायनामिक वर्ब के, देयर आर 2 टाइप्स। One is called regular verb and the other is called irregular verb. Regular verb and irregular verb. Now what is regular verb? Regular verb क्या है? Regular verb क्या है? Okay, so regular verb ये जिस वर्ड के एंड में डी या ईडी आ जाए, ठीक है, when D or E comes then that verb is called regular verb. For example मैं आपको एग्जांपल दूंगा इधर, ये decide, DECIDE, ये एक रेगुलर वर्ब है, तो इसके साथ हम डी लगा देंगे तो इससे सेकंड और थर्ड वर्ब ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है। डिसाइडेड, डिसाइडेड। एक और एग्जांपल पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, सो PARTICIPATE, पार्टिसिपेट, इसके साथ हम डी लगाते हैं तो पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फिर में ये तो डी, हमने सिर्फ डी लगाया तो इसके सेकंड फॉर्म ऑटोमेटिकली बन गई। अच्छा, कॉल, CALL कॉल, इसके साथ हम ED लगा देंगे तो कॉल्ड, कॉल्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गए, ओके। इसी तरह किक, तो इसके साथ किक्ड, किक्ड, यहाँ वो पॉइंट है कि ED की जगह वो T लग जाएगा, लेकिन ये मैं अभी इसकी तरफ आता हूँ। ये इर्रेगुलर वर्ब एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। तो इर्रेगुलर वर्ब क्या है? इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब जो ये अगर हम डी और ED एंड में लगा दें और इससे सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली बन जाए, सो दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। अब डी और ED इसके ज़रिए अगर मैं क्रॉस लगाए तो अगर इसके ज़रिए सेकंड और थर्ड फॉर्म ना बनते हो तो, और किसी और तरीके से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनते हो, सो दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। अब इस इर्रेगुलर वर्ब की जो है ना मज़ीद, इस इर्रेगुलर वर्ब की मज़ीद 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और कैटेगरी नंबर 1 इर्रेगुलर वर्ब जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ हो एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन। गो,
went, gone. इसी तरह take, took, taken. इसी तरह see, saw, seen, etc. इस तरह है जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है. सो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी. और देखो ये डी और ई डी पी नहीं बने, इसलिए दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब. यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स दिए तो वो सारे रेगुलर वर्ब डी और ई डी पे बनते हैं, और जो डी और ई डी पे नहीं बनते तो वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं. तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी क्या है, जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो. गो, वेंट, गॉन, टू, take, took, taken, see, saw, seen, etc. बहुत से. दूसरा कैटेगरी इसमें है जिसके तीनों फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे हो. फॉर एग्जांपल पुट, 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 पुट. फाइन. कट, कट, कट. शर्ट, शर्ट, शर्ट. बीट, बीट, बीट. इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा है. थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी ये है कि जिसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा हो और सेकंड फॉर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हो. तो वो क्या है? कम, खेम और कम. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ इंग्लिश में दो है, कम और बिकम. बस कम, खेम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम. बस ये दो, पूरे इंग्लिश में सिर्फ ये दो अल्फाज है जिसके फर्स्ट और थर्ड एक जैसे और सेकंड मुख्तलिफ है. लास्ट कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी जो वर्ब की है वो क्या है? वो है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मुख्तलिफ हो और पहला वाला मुख्तलिफ हो. फॉर एग्जांपल ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. Bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Fine. इसी तरह catch, caught, caught. इसी तरह teach, taught, taught. Think, thought, thought. तो ये मुख्तलिफ है. तो ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज है. अब ये देखो, ये रेगुलर वर्ब था. रेगुलर वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ई डी पे बनते हैं, और इर्रेगुलर की 4 कैटेगरीज हैं. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आएगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल इसी तरह भी तो कहा जा सकता है. फॉर एग्जांपल गो, तो गोड, गोड भी कहा जा सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है. ठीक है, तो किस तरह पता चलेगा? तो ये जो इर्रेगुलर वर्ब है ये इंग्लिश में 188 तकरीबन, मैं इसी तरह कहूँगा 180 से लेकर 190 तक, ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ इतने हैं. तो आप जाके गूगल में दे दे इर्रेगुलर वर्ब लिस्ट PDF, तो पूरा लिस्ट आ जाएगा. ठीक है, मेरे आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ जो मैंने कलेक्ट किए हैं, जो मैंने बनाए हैं. तो मैं आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा. आप गूगल में भी जाके इर्रेगुलर वर्ब लिस्ट PDF में डाल दे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा. वही इर्रेगुलर वर्ब है इन 4 कैटेगरीज में. इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में जो लाखों करोड़ों वर्ब्स हैं वो सारे रेगुलर हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि अब ये जो इर्रेगुलर वर्ब की जो लास्ट में डी और ई डी आता है, तो ये कुछ जगहों पे ये डी प्रोनाउंस नहीं होता, ये टी प्रोनाउंस होता है. ठीक है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब, ये जहन में याद रखें. इर्रेगुलर वर्ब के एंड में डी या ई डी आता है. अब इंग्लिश में 6, there are 6 sounds in English language. When that comes before D, so that D is then pronounced as T. इंग्लिश में 6 इस तरह आवाज़ें हैं कि वो डी से पहले आ जाए तो फिर वो डी उसकी तलफ़ुज़ जो है ना वो डी नहीं होती, वो ठी होती है, ठी, ठा. Fine. Like first one is पे. ठीक है, मैं अब आपको एग्जांपल दूंगा. स्टॉप. तो जब इसके हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे स्टॉप, तो ये इस तरह स्टॉप्ड, फिर डाल की जगह टे आएगा. स्टॉप, स्टॉप्ड.
like second or third form, stop, stopped, 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 stopped ना, नहीं, stopped, stopped. दूसरा she, watch. तो जब इसका हम सेकंड फॉर्म में आते तो ये इस तरह है, watched, watched, watched नहीं है, डा ये प्रोनाउंस नहीं होगा, watched, watched, very soft, watched, watched, ठ ठ प्रोनाउंस होगा. ओके, फिर है फा, तो laugh, laugh, so laughed, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा, laughed, लापड, लाफड नहीं होगा, लापड. देखो ये लंग्स कितना जोर लेता है जब हम इसको बोलते, तो ये इस तरह प्रोनाउंस नहीं होता. लाफ्ट, लाफ्ट, वेरी सॉफ्ट. इसी तरह काप, तो ये किक्ड, 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 किकड, किकड ये ठीक नहीं है, किक्ड, किक्ड. तो ये थर्ड. फिर सीन, पास, तो ये सिंपली जिस तरह होंगे पास्ट, पास, पास्ट, पास्ट, इस तरह बोल. पासड, पासड ये इस तरह नहीं बोला जाता, इसकी तलफ़ुज़ वो नहीं है. पास्ट, सिंपली वेरी सॉफ्ट, पास्ट. और शीन, तो इसकी वाश, वाश्ड, वाश्ड, वाशड, वाशड इसकी तलफ़ुज़ नहीं है, ये नहीं बोला जाता, वाश्ड. ओके, सो दीज आर द 6 साउंड्स, 1 2 3 4 5 6. ये फ, फा, ख, स, श. ये जब ये डी और ई डी से पहले जब ये आवाज़ आ जाए, डी और ई डी से पहले जब ये 6 आवाज़ें आ जाए, तो फिर वो डी ड प्रोनाउंस नहीं होगा, वो ठ प्रोनाउंस होगा, ठ. ओके, सो ये दोनों जगह आए थे, ये ठ और ड जब हम डिस्कस कर रहे थे साउंड नंबर 3 और साउंड नंबर 4, तो वहाँ पर ये मसला आया था, लेकिन मैंने उस वक्त अवॉइड किया. अभी डिटेल के साथ आप लोगों को ये मैंने बता दिया. रेगुलर, रेगुलर, सॉरी, ओके, ये सॉरी, रेगुलर, ओके, मिस्टेकनली, गलती के साथ, रेगुलर वर्ब. रेगुलर में इरेगुलर की तो वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. रेगुलर वर्ब में जो डी और ई डी आते हैं, सो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. we talked about 4 sounds, प, ब, ठ एंड ड इन डिटेल्स. और हमने हर साउंड की सिंबल्स, उनके साउंड्स, उनके स्पेलिंग पैटर्न्स, साइलेंट साउंड पैटर्न्स और फिर वर्ड्स पर प्रैक्टिस, ये 5 चीज़ें हमने हर साउंड में डिस्कस कर दी. और फिर ये प, ये ठ और ड के हवाले से ये चीज़ एक्सप्लेन करना लाजमी थी, तो हमने थोड़ा सा वो वर्ब भी टच कर दिया इसके साथ, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए. और ये रेगुलर वर्ब में लास्ट में डी या ई डी आता है, तो इससे पहले अगर ये 6 साउंड आ जाए तो फिर वो ड प्रोनाउंस नहीं होगा, बल्कि वो ठ प्रोनाउंस होगा, ठ. ओके, सो आई होप यू वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम टुडेज क्लास.